کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے ہسپتالوں میں جان لیوا مرض کی تشخیص کی سہولت نایاب۔ الائیڈ ہسپتال ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں مشکلات کا سامنا۔ ہیپاٹائٹس کٹس ہی موجود نہیں، مریض خوار ہونے لگے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کے ہسپتالوں میں جان لیوا مرض کی تشخیص کی سہولت نایاب ہو گئی ہے۔ الائیڈ ہسپتال میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں کو ٹیسٹ کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہیپاٹائٹس کٹس ہی موجود نہیں ہے، مریض خوار ہونے لگے ہیں۔ بات کریں گے عزیزار حسین سے۔ عزیزار حسین، بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کب سے نہیں ہو رہے؟ الائیڈ ہسپتال میں جو ہے وہ ہیپاٹائٹس PCR کٹس ختم ہونے کے باعث جو مریض ہیں جان لیوا مرض میں مبتلا انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مرض کی تشخیص کے لیے وہ باہر پرائیویٹ جو لیبارٹریاں وہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس سے ہمارے ساتھ مریض موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی بھائی، کدھر سے ہیں؟ کیا السلام علیکم جی۔ ہاں جی، ہم PCR کی رپورٹ کروانی تھی ہم تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں، خجر خراب ہو رہے ہیں الائیڈ ہاسپٹل میں باقاعدہ ان کی وہ جب بھی آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کٹ خراب ہے۔ ہم باہر سے جاتے ہیں، باہر سے وہ مہنگی ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ہم نہیں کروا سکتے۔ ہاں جی بالکل، ہیپاٹائٹس کی جو PCR کٹس ہیں وہ ختم ہے اور مریض کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہے کہ وہ باہر پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں سے جو ہے مہنگے داموں لیبارٹریوں سے جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ٹیسٹ نہیں کروا سکتے۔ اس لیے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہیپاٹائٹس کی جو PCR کٹس ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ اس مسئلے پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائیڈ ہسپتال ڈاکٹر سلیل چیمہ کا یہ کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس PCR کٹس کی خریداری کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے اور امید ہے کہ جلد بہت شکریہ عزیزار حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کورونا کی صورتحال کی بات کریں تو مہلک وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 74 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں مزید 6 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 59 میں کورونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ ٹوبہ میں 7 اور چنیوٹ میں 5 جبکہ جھنگ میں 3 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے مہلک وار جاری ہیں۔ ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 24 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جنگ سمیت ڈویژن اور صوبہ بھر میں کورونا ویکسینیشن کے مراحل کو مزید آسان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موبائل ٹیمیں بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بزرگ اور معذور افراد کو ویکسینیشن گھر گھر جا کر کی جائے گی۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جھنگ میں تمام تر کورونا ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین کا عمل بآسانی جاری ہے۔ اس ویکسین کے عمل کو مزید آسان کرنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے محکمہ صحت جھنگ کو ہدایات موصول ہوئی ہیں، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ جھنگ سمیت ڈویژن اور صوبہ بھر میں جو بزرگ افراد ہیں ان کی ویکسین کے لیے جو ہے وہ عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر پر 4 موبائل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر 2 موبائل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ یہ ٹیمیں بزرگ، ضعیف اور معذور افراد کی گھر گھر جا کر ویکسین کریں گی۔ ایسے افراد جو ویکسینیشن سینٹر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہی یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو RSC اور BHU ہیں وہاں پر بھی ویکسینیشن سینٹرز کو فعال کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ جو ہدایات موصول ہوئی ہیں اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو فیسکو ہے، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس ہے اور دیگر ایسے سیمی گورنمنٹ ادارے جن کے اپنے ہسپتال ہیں وہاں پر بھی ویکسینیشن سینٹر بنائے جائیں گے، جبکہ جو پرائیویٹ ہسپتال کی انتظامیہ ہیں ان سے بات کر کے ان ہسپتالوں میں بھی ویکسینیشن سینٹر بنائے جائیں گے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور محکمہ صحت جھنگ نے اس حوالے سے کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ تمام تر دستیاب جو سہولیات ہیں اس کا ریکارڈ حکومت پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا مبشر حسن نقوی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے باسیوں کی مشکلات میں کمی نہیں آئی۔ ریکارڈ آن لائن کرتے وقت پٹواریوں نے ہزاروں انتقالات غلط درج کر دیے۔ اراضی سینٹرز میں سائلین کا رش ہے، ادھر 10 سال گزرنے کے باوجود اراضی ریکارڈ درست نہیں ہوا۔ پٹواریوں کے چنگل سے بچایا جائے، یہ کہنا ہے سائلین کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کے باسیوں کی مشکلات میں کمی نہیں آئی ہے۔ ریکارڈ آن لائن کرتے وقت پٹواریوں نے ہزاروں انتقالات غلط درج کر دیے ہیں۔ اراضی سینٹرز میں سائلین کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ادھر 10 سال ہو گئے اور اراضی ریکارڈ درست نہیں ہوا۔ پٹواریوں کے چنگل سے بچایا جائے، یہ کہنا ہے سائلین کا۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں عبد الرحمان ادھر ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عبد الرحمان، بتائیے گا کہ یہ ہزاروں انتقالات کیا جان بوجھ کر غلط درج کیے گئے ہیں، اور سائلین بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟
साइलिन का ये कहना है कि पटवारी और यहाँ पर राजीव कार्ड सेंटर का अमला जानबूझकर शहरियों को ख्वार करता है और इंतकाल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्हें रजिस्ट्री नहीं मिल पाती, मामूली गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से सालों में चक्कर लगाए जाते हैं और फिर भी मामला हल नहीं हो रही। यहाँ पर मसला कैसे साइल मौजूद है जो 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, उनका मामला भी जानते हैं। कि बताइए कि आपका इंतकाल क्यों बात नहीं हो रहा है? हमने इंतकाल करवाया था 1919 में 11वें माह में इंतकाल हो गया, बयान हो गए, फीसा जमा हो गई, युवा भी भुग गए। वो बावजूद जो उन्हें फैसला लेना है उन्होंने थोड़ा इंतकाल ही पास नहीं है। पूछा क्यों नहीं होया, कहते थोड़े अफसर बदल के जिन्होंने बयान लिया इस वक्त फैसला बदल जा चुके हैं, जो आने उदों ही होंगे, जो भी आने 2 सालों आने, 4 आने, 2 दिन आने, जिन्हें चर आए नहीं होए हूँ असी दरखास्त अप्लाई किया हुआ। ये गेड़े के गेड़े लगी जाते हैं, उधर कचहरी चल जाओ, कचहरी उधर आ जाओ, साढ़े 12 साल अजे तक साढ़ा बया कुछ नहीं है। 2 साल का मुसलसल चक्कर लाना है। यहाँ मुसलसल चक्कर लगवाए जा रहे हैं, कभी पटवारी के, कभी राजी अमले के, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मजीद साइल भी मौजूद है। जी आप ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੋਕਨ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 8-8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਘਾਟਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੈਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 150-150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੈਣ ਤੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਸੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ 4-5 ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ गौर किया जाए। इस हवाले से यहाँ पर यही मुतालबा जो साइलिन है उनकी जानब से किया जा रहा है कि उनका इंतकाल ताक़ीद का बाइस बनता और जब हो जाता फिर उसके बाद बात नहीं होता और इसमें कई साल तक लग जाते हैं। ये तकरीबन 10,000 के करीब ऐसे केसेज हैं जो इसी तरह से लटके हुए हैं, जिसमें 2008 से 2021 के दरमियान जो भी इंतकाल हुए हैं वो पास नहीं हो रहे, चाहे उसके नाम की गलती हो, उसमें कोई प्रॉपर्टी का हेर फेर किया हो या कोई भी रकबा कम या ज़्यादा ज़ाहिर किया गया हो, वो भी इसी तरह से मामला बन जाता है। और स्पेशली जो डायरेक्ट इंतकाल होते हैं वो बाद में DLR या पटवारी चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो इंतकाल की प्रॉब्लम्स है वहाँ पर है। और इसके अलावा जो FTA के केसेस मुख्तलिफ कानूनी के स्टे आर्डर किए होते हैं, उनकी वजह से भी जो शहरियों को 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पर जो हमला है वो कभी लीगल एडवाइजर ना होने की वजह से अदालतों के चक्कर लगा रहा है और कभी यहाँ पर मौजूद और जो साइलिन है उनके चक्कर लगवा रहे होते हैं कि वो साइलिन के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के बासियों की मुश्किलात में कमी नहीं आई है। रिकॉर्ड ऑनलाइन करते वक्त पटवारियों ने हजारों इंतकाल गलत दर्ज किए। आराजी सेंटर्स में साइलिन का रश है, 10 साल गुजर गए, इसके बावजूद आराजी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ। पटवारियों के चुंगल से बचाया जाए, ये कहना है साइलिन का। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पटवारियों के चुंगल से आज़ाद कराने की बात तो की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। फैसलाबाद में सरकारी नाले पर दुकानें कैसे वजूद में आ गईं? सरकारी जगह की प्राइवेट रजिस्ट्री कैसे हो गई? रेवेन्यू हुकाम ने मामले पर चुप साध ली है। अदालती हुक्म के बावजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों रोका गया? रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई और ना ही तनसीख। मामला गोल मोल होकर रह गया है। फैसलाबाद में सरकारी नाले पर दुकानें कैसे बन गईं? सरकारी जगह की प्राइवेट रजिस्ट्री कैसे हो गई? रेवेन्यू हुकाम ने मामले पर चुप साध ली है। अदालती हुक्म के बावजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों रोका गया? जवाब गोल मोल किया जा रहा है। रमजान मिर्जा से मजीद जानेंगे। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्कुलर रोड पर मौजूद सरकारी नाले के ऊपर दुकानें बन गई, मार्केट बन गई और
ایک منزلہ نہیں 3-3 منزلہ یہاں پر دکانیں موجود ہیں، اور یہ دکانیں کیسے بن گئیں سرکاری نالے کے اوپر، اس کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کے پاس کوئی جواب موجود نہیں۔ میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں عثمان، یہ دکھائیے گا، یہ نالے کے سلیب ہیں اور یہ ساری جگہ جو ہے یہ سرکاری نالے کی ہے، اور یہاں پر عثمان یہ بھی دکھائیے گا کہ دوسری طرف ایک بڑی شاندار جو ہے وہ مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ یہ چنیوٹ بازار کے باہر کا حصہ ہے جہاں پر وکیلاں والی گلی جو ہے وہ ساتھ ہے، اور عثمان اور میرے عقب میں بھی جو ہے یہ ایسی ہی مارکیٹ ہے، اور مجموعی طور پر یہ 300 کے قریب دکانیں جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جب فیصلہ کیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں جتنی بھی سرکاری اراضیوں کے اوپر تجاوزات موجود ہیں یا قبضہ موجود ہے اس کو واگزار کروایا جائے، انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سال اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا گیا، لیکن اس سرکاری اراضی کی رجسٹریاں سامنے آنے لگی۔ ان رجسٹریوں کو جواز بنا کر اس آپریشن کو روک دیا گیا، اور یہ رجسٹریاں جو ہیں یہ بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئیں، اور آج جو ہے کئی ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک ان رجسٹریوں کی نہ تو تصدیق کی جا سکی نہ ہی تنسیخ ہو سکی، جس کے باعث نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت سیاسی پریشر یا انتظامی رکاوٹ کے باعث اس معاملے کو گول مول کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ تقریباً اربوں روپے کی 500 سے زائد دکانیں ہیں، جن میں گھنٹہ گھر کے گول بازاروں کے کارنرز پہ موجود تقریباً 50 دکانیں ہیں، اور یہ جو سرکولر روڈ ہے اس کی بھی لگ بھگ 300 دکانیں ہیں، دو طرفہ دکانیں ہیں جہاں پر یہ تجاوزات موجود ہیں، اور اس حوالے سے متعلقہ ادارے اور حکام جو ہیں وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے رمضان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ انصاف حکومت شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام، چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز ریٹ کا آٹا، گھی اور چینی نایاب، شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریداری پر مجبور ہیں۔ بات کریں گے بابر منیر سے۔ بابر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ماہ سیام کے بعد یوٹیلیٹی سٹوروں پر کوئی صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے۔ عید بھی گزر گئی ہے اور عید کے بعد بھی اب تک چنیوٹ کے جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں پر سبسڈائز ریٹ کی جو چینی، گھی اور آٹا ہے وہ نہیں پہنچ سکا، جس سے خریدار جو ہے وہ مہنگے داموں، مہنگائی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں پھر سے اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ خریدار اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم کیا کہیں گے، کیا چیز خریدنے آئے ہیں؟ چینی، گھی، آٹا ملے؟ بھئی ہم گھی، آٹا، چینی خریدنے آئے ہیں تو وہ نہیں ملی۔ جب سے عید گزری ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں پر یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں، اور کبھی کبھی آتی ہیں تو وہ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ تو ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ نے دی گئی ہے اور یہ جلد از جلد یوٹیلیٹی سٹوروں پر یہ فراہم کی جائے۔ بالکل جی، خریداروں کی آپ نے بات سنی اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ عید کے بعد اب تک جو یوٹیلیٹی سٹور ہے وہاں پر سپلائی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے، جس وجہ سے انہیں مہنگے داموں، مہنگائی کی ایک طرف ہے اور دوسری جانب مہنگائی میں اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء جو ہے وہ خریدنا پڑ رہی ہیں، اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب وہ سبسڈائز ریٹ کی اشیاء وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہیں، جس وجہ سے اسی روز یا اس سے اگلے روز چینی، گھی، آٹا کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شہری یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ ایک تو ان چیزوں پر سبسڈی جو ہے وہ دی گئی ہے ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ ممکنہ طور پر جو شہری ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ۔ شکریہ بابر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قیدیوں کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا، ایک دوسرے پر مکوں اور بالٹیوں کے ساتھ تشدد کیا۔ ڈی آئی جی جیل کا نوٹس، 3 اہلکار معطل، رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ لڑائی میں ملوث ایک گروہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قیدیوں کے 2 گروہوں میں تصادم ہوا ہے، ایک دوسرے پر مکوں اور بالٹیوں کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ ڈی آئی جی جیل کا نوٹس، 3 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں، جبکہ رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا کیا واقعہ ہے یہ؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں ایک ہی ماہ میں قیدیوں کے دوران لڑائی کا دوسرا واقعہ سامنے آ گیا ہے، جس سے لواحقین میں شدید قسم کی تشویش پائی گئی ہے۔ ایک واقعہ چند روز قبل پیش آیا تھا جس میں ایک قیدی کے تشدد سے دوسرا قیدی سول ہاسپٹل میں پہنچ کر جاں بحق ہو گیا تھا، تاہم اب یہ دوسرا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں معمولی تلخ کلامی پر قیدیوں کے ایک گروہ نے دوسرے قیدیوں کے سیل میں جا کر باقاعدہ طور پر دھاوا بولا، مکوں اور پلاسٹک کی بالٹیوں کے ساتھ تشدد کیا گیا، جو ہاتھ لگا ایک دوسرے کو مارا گیا۔ تاہم جیسے ہی واقعہ
वाकये का इल्म DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल को हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर वाकये का नोटिस लेते हुए इब्तदाई तौर पर इसमें मुलव्वस पाए गए 3 जेल एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें हेड वार्डर मोहम्मद इफ्तिखार, वार्डर खालिक दाद और साथ मोहम्मद नदीम भी शामिल हैं। इन तीनों को मुअत्तल करते हुए दूसरे जो इजला है उनकी जेलों में भेज दिया गया है, जबकि लड़ाई करने वाला कैदियों के एक गिरोह को भी सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल से भी जामे इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि बताया जाए कि आखिर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में हो क्या रहा है, कैदियों की सिक्योरिटी कहां पर है और वहां पर मौजूद कैदियों पर जेल इंतजामिया का जो जोर है, जो दबाव है, वो किस हद तक है, ये तमाम तर उनको बताया जाए। साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर अपनी ये तमाम तर इंक्वायरी रिपोर्ट जामे शक्ल में बनाकर DIG जेल ओवरटेक्सिंग में 5 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए BS ब्लॉक को बने 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाल काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सका। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। शाहिद से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ। आपको बताएं कि ओवरटेक्सिंग में 5 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के लिए BS ब्लॉक को बने 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाल काबिल इस्तेमाल ना लाया जा सका। बंद पड़ी इमारत मुख्तलिफ मुकामात से खराब होने लगी है। शाहिद से राब्ता हुआ है। शाहिद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ओवरटेक्सिंग गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के हवाले से BS ब्लॉक जो है 2016 से 18 में मुकम्मल हुआ और मुकम्मल हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वहाँ तक अभी तक जो है क्लासेस का इजरा नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, क्या वजूहत है? इतना अरसा हो चुका है, बिल्डिंग ख़राब होना शुरू हो चुकी है, क्या वजूहत है? किसकी नाकामी है? क्यों हमारे जो है उसमें क्लासेस का इजरा नहीं हो रहा? जी आप सही कह रहे हैं कि ये 2016 से 18 में ये KD स्कीम थी हमारे पास और तकरीबन ये 45 मिलियन के करीब इसकी ग्रांट थी और 5 मिलियन के करीब इसकी रेवेन्यू ग्रांट थी। तकरीबन चीज़ें जो हैं वो इसकी कंप्लीट है। हैंड ओवर के बीच में ये था कि थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि दूर कर दी गई थी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हम इन टच हैं और ये इंशाल्लाह जल्दी ही मंसूबा जो है हम लोग उसको हैंड ओवर भी कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक सुई गैस के कनेक्शन का डिमांड नोटिस था, जिसकी वजह से ये अभी इसमें थोड़ी सी डिले हुआ है। वो भी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द जमा करवा के तो उसको हम हैंड ओवर करेंगे ताकि बच्चों की जो तालीमी ज़रूरियात है उसको हम पूरा कर सकें, तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। जंग से खबर शामिल करेंगे। नए तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए हैं, पुराने मंसूबे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब सेकंड लास्ट बजट अगले माह देने जा रही है, जिसके लिए तमाम अरकान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा ने तैयारियां शुरू कर ली हैं और अपने अपने हलकों में ज़्यादा तरक्याती काम करवाने का आगाज़ कर दिया है। इसी में सूबाई वज़ीर खेल तैमूर भट्टी ने अपने हलके के अंदर जो नए तरक्याती मनसूबे हैं, जो खेलों के नए तरक्याती मनसूबे हैं, वो 4 मनसूबे मंजूर करवा लिए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की जानिब से 3 जो नए जो मनसूबे थे जो अपग्रेडेशन के लिए भिजवाए गए थे, जिसमें शफकत शहीद ग्राउंड, शाहिद शहीद हॉकी ग्राउंड शोरकोट, इसके साथ साथ माई हीर क्रिकेट स्टेडियम जिसको फ्लड लाइट किया जाना था, शफकत शहीद ग्राउंड जिसको फ्लड लाइट और कमर्शियल मार्केट बनाई जानी थी, जबकि शाहिद शहीद जो हॉकी ग्राउंड है उसको अपग्रेड किया जाना था। लेकिन ये तीनों मंसूबे जो हैं वो मंजूर नहीं हो सके, जबकि जो नए 4 मंसूबे थे जिसमें मंडी शाह जिमना के अंदर मिनी इंडोर जिम्नेजियम है, इसके साथ साथ रत्ता मंता में वॉलीबॉल कोर्ट है, खीवा में मल्टीपल स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, इसके साथ साथ अखड़ियाँ वाला के अंदर वॉलीबॉल कोर्ट जो है, ये चारों जो है नए मंसूबे हैं, इनको स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना है कि एक मरतबा फिर जो 3 मंसूबे हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा, उस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड को दरख्वास्त की जाएगी। उम्मीद है कि दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली जाएगी और आइंदा स्पोर्ट्स बोर्ड में उनके लिए बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्यूट के सरकारी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, नर्सेस की 42 आसामियां ताहाल खाली हैं, मरीजों की देखभाल मुतासर। भर्तियों के लिए महकमा सेहत को प्रपोजल भेजी हुई है, इंतजामिया ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। मजीद बात करेंगे वकार घूमन से। वकार बताइएगा। PHQ अस्पताल को बने तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस ज़िले के सबसे बड़े अस्पताल की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो सकी। स्टाफ की आज भी कमी का सामना है।
42 जो स्टाफ नर्सेज हैं उनकी कमी है, उनकी आज तक तैनात नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ज़िला भर से जो आने वाले मरीज़ हैं यहाँ पे उनकी देखभाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 10 बेडों पर एक जो स्टाफ नर्स है वो अपनी ड्यूटी से अंजाम देती है। इसी तरह बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी कमी है, जिसकी वजह से हस्पताल के जो मामला चलाने में शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि पैरामेडिक्स की भर्तियों के लिए महकमा सेहत को लिखा हुआ है, जैसे ही मंजूरी होगी अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा, उसके बाद भर्तियाँ की जाएंगी। ताहम अभी तक स्टाफ की भर्तियां ना होने की वजह से हस्पताल के मामला चलाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन है जो, उसका भी यही कहना है कि हस्पताल में स्टाफ की कमी को जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। वकार घुम्मन। चिन्यूट में पंजाब हुकूमत महकमा ज़राअत की नाक़िस पॉलिसियाँ जड़ी बूटियाँ फसलों को नुकसान पहुँचाने के साथ फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनने लगी। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, हर वो पौधा जो ऐसी जगह उगाए जहां उसे नहीं उगना चाहिए जड़ी बूटी कहलाता है। और गाजर जड़ी बूटी इस वक्त एशिया की ख़तरनाक तरीन जड़ी बूटी है जो फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार बुरी तरह मुतासर कर रही है और मयार में भी कमी का बायस बन रही है। और ज़राई माहिरीन के मुताबिक ये 42% तक जो फसल की पैदावार है उसे जो है वो बुरी तरह मुतासर कर देती है, जिससे काश्तकार भाई भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे जिस तरह जड़ी बूटियाँ फसलों में नुकसान पहुँचा रही हैं, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये गाजर जड़ी बूटी है, इसकी वजह से फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये बन्नों और खालों में पाई जाती है। एक फसल से दूसरी फसल में हवा पानी से दाखिल होती है। जैसे एक जानवर एक खाते से दूसरे में दाखिल होते हैं तो उनसे भी ये दाखिल होती है। तो हमारी ज़राई माहिरीन से बात होती है तो वो कहते हैं इसके लिए लाए अमल अभी तक कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। तो हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से मुतालबा है इसके ख़त्म के लिए जल्द अज जल्द पाकिस्तान में कोई ना कोई लाए अमल जाए। और दूसरी बात यह है कि जब हम माहिरीन से बात करते हैं तो वो कहते हैं आपने खुद से कोई अमल तैयार करें, कोई ज़हरीन कोई मेडिसन दें जिसकी वजह से ये ख़त्म हो जाए। तो इसकी वजह से फसल की पैदावार में काफ़ी नुकसान है। फसल की पैदावार में काफ़ी नुकसान है। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना फैजुल्ला कमोका की महकमा तालीम की दाखिला मुहिम तकरीब में शिरकत। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 214 रेवे डुडीवाला में दाखिला मुहिम तकरीब में सिव एजुकेशन अली अहमद सयान, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका ने भी शिरकत की है। मजीद बताएंगे जहांगीर अशरफ। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के बायस तालीमी अदारों में जो तलबा ड्रॉप आउट हुए थे उनको वापस लाने के लिए दाखिला मुहिम चलाई जा रही है। और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान को और स्कूल कौंसिल मेंबरान को कहा गया है कि वो अपने अहले इलाका जो हैं उनसे राब्ते में रहें ताकि ऐसे बच्चे जो अभी तक किसी स्कूल में इनरोल नहीं हो सके उन्हें स्कूलों में लाया जाए। इसी हवाले से आज डूडीवाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी इनरोलमेंट कैंपेन का जो तकरीब है उसकी मुनक्किद की गई है। इस हवाले से एबन फैजुल्ला कमोका यहाँ पर मेहमान खसूसी थे। आज सिव एजुकेशन अली अहमद सयान भी मौजूद थे, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल से चेयरमैन खालिद हयात कमोका भी मौजूद थे। फैजुल्ला कमोका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे कोरोना की वजह से, क्योंकि तालीमी इदारे बहुत एक लंबा अरसा बंद रहे हैं और स्टिल फैसलाबाद में तालीमी इदारे बंद हैं। क्या कहते हैं, बच्चों का कितना ज़रूरी है कि उनको स्कूल में दाखिल तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वो तालीम छोड़कर चाइल्ड लेबर में चले गए हैं। क्या पैगाम दिया गया आज की इस तकरीब में? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और फैसलाबाद के हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो CEO जनाब अली अहमद सयान साहब की क़यादत में इस वक्त भरपूर तरीके से इस कैंपेन को लेके चल रहा है। और इन्होंने अवामी नुमाइंदगान को भी और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उनको भी अपनी इस मुहिम का हिस्सा बनाया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। और बदकिस्मती से पिछले अदवार में तालीम को बड़ी बुरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। ये अगर किसी कौम ने तरक्की की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की वजह से ही की है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये विज़न है, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सक रहे, 2 करोड़ 37 लाख के करीब जो बच्चे हैं उनको हमने इंशाअल्लाह ताला स्कूलों में लेके आना है। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लेकर आना है। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिम्मेदारान का बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करने के इजलास से मुनक़िद इजलास हुआ है। मजीद बात कर लेते हैं हम अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ है। इजलास की सदारत डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी की जानिब से की गई है और इजलास में ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया गया है और उन नुमाइंदों को मुकम्मल अख्तियारात देने के हवाले से मुतालबा किया गया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से। और आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उनमें भरपूर तरीके से तैयारी से हिस्सा लेने का भी कहा गया है। डिवीज़नल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहते हैं आज के इजलास के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक PP 111 के यूनिट ज़िम्मेदारान और अरकान राब्ता कमेटी का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में तंजीम साजी के लिए टारगेट्स दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशा है। इस्लामी निज़ाम का नफाज ही हमारे मसाइल हल करता है और हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि जो बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल किए गए उनको इख्तियारात भी दिए जाए। बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो अवाम के मसाइल ग्रास रूट लेवल पर हल होंगे। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनको अख्तियारात मिलेंगे तो उससे जो आम मसाइल हैं, गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो आसानी से हल होंगे। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस हवाले से मुतालबा करती है हुकूमत से कि जो नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको अख्तियारात उनके वापस दिए जाएँ ताकि जितने भी मसाइल हैं, आम मसाइल जो शहर के हैं वो मसाइल हैं वो हल हो सकें। बहुत शुक्रिया फजील, आपने हमें अपडेट किया। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था आप भी देखिए। किया जा रहा है उन सहूनी कुव्वतों से, यहूदी जो है जो उन पर जुल्म ढाया है, जो 11-12 दिन उन पर जो है यलगार की गई है, बमबारी की गई है, जिस तरह से उनको जो है कत्ल गारतगरी की गई है वहाँ, मैं समझता हूँ कि ये बैनुल अक़वामी बरादरी की और उस इदारे का जिसे यूनाइटेड नेशंस हम कहते हैं उसके ये नाकामी का मज़र है। इस तरह से अगर कत्ल गारतगरी जारी रखी गई तो बैनुल अक़वामी उस इदारे का कोई अफादियत नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को एक सुपर पावर कंट्रोल करती है तो फिर बैनुल अक़वामी बरादरी को इस चीज़ का इहाता करना चाहिए कि क्या फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून जो है वो सुर्ख है या स्याह है। क्या इसी तरह अगर किसी और मगरबी ममलकत में अगर ऐसी रियासत में कत्ल गारतगरी होती तो क्या इसी तरह बैनुल अक़वामी बरादरी खामोशी का इजहार करती। क्या कश्मीर के जो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं जिन पर सबसे बड़ी जेल इस दुनिया में और सबसे तबालत से उनको मुक़य्यद किया गया है और पैलेट गन्स के ज़रिए उनको अंधा कर दिया गया है, और क्या जिस तरह से मोदी सरकार ने तरमीम करके अपने आईन में जिस तरह जम किया है, क्या ये जो है अगर किसी और ऐसे मगरबी ममालिक की ऐसा होता तो क्या फिर भी वो उनका यही रद्द अमल होता। तो मैं समझता हूँ जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी ने तो अपना हर जगह, खा वो अमेरिका हो, खा वो यूरोप हो, दुनिया के हर मुल्क में उनकी आवाम निकली है सड़कों पर और उन्होंने इजहार यकजहती की है और इंसानियत सोज मजालिम का उन्होंने जो है शदीद मजम्मत करते हुए अपनी हुकूमतों को मजबूर किया कि बिलाखिर वो सीज़ फायर की। लेकिन क्या इसका सीज़ फायर ही हल है? क्या मुस्लिम उम्मा के वो 56 मुल्क जो हैं उसी अंदाज से जो है अपना एक करारदाद मंजूर करके वो समझते हैं कि वो अपने उस फर्ज से वो जो है सुबकदोश हो गए, फर्ज से वो जो है अपना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।